أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dearest young scholars, we are going to have the second session now of our presentations about now other presentations on chapter number 1 of paper 5. I'm sure you know the name of the paper. It's Pakistan Affairs now. And we had the first session of our presentation, and two presentations were given by two young scholars named Mr. Faisal and our beloved now Mr. Asim now. We are going to have two more presentations on the same topic. The topic is ideology of Pakistan. That is now you can say name of the first chapter. Yesterday we discussed what is ideology, its definition, elucidation, and historical aspects. And the second part, which was discussed yesterday, it was that ideology of Pakistan in the light of the thoughts of Iqbal and Jinnah. Today we are going to talk about the Muslim rule in the subcontinent and we are going to talk about their contributions and the factors which led to their failure their downfall. So this topic is going to be discussed by Mr. Atif. Factors, reasons which led to the downfall of the Muslim rule in the subcontinent. Am I right? Yes. And in the second half of the session, Mr. Yasir will let us know about the efforts which were made to revive the rule in the subcontinent and for the revival, for the rebirth, for the renaissance efforts were made. And those efforts were made by different individuals like Sheikh Ahmad Sirhindi or Shah Waliullah or Sir Sayyid Ahmad Khan and many more. And first half of your presentation shall be about the individuals and their efforts and the second half of your talk you will let us know about the movements which were launched or the institutions which were set up just to make effort for the achievement, for the revival, for the renaissance of the Muslim rule. And under that heading you will talk about, I think, Aligarh University, Aligarh movement, and later on Deoband and Nadwatul Ulama, Madrasatul Islam, and there's a Peshawar. What's the name of the college? Islamia College, Peshawar. Am I right now? Yes, sir. So you are ready for the presentations today? Yes, sir. Sure. So I request now my beloved Mr. Atif to please come on the dais and talk about the topic you were assigned. Please. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. The topic which we will discuss today is causes of the Muslim downfall in the subcontinent. So first of all, I will discuss that चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना चुपके
खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, और दुपट्टे से तेरा वो मुंह छुपाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। बेरुखी के साथ सुनना दर्द दिल की दास्तां, बेरुखी के साथ सुनना दर्द दिल की दास्तां, वो कलाई में तेरा कंगन घुमाना याद है। हमको अब तक आशिकी का ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। वक्त रुखसत अलविदा का लफ्ज कहने के लिए, वक्त रुखसत अलविदा का लफ्ज कहने के लिए, वक्त रुखसत अलविदा का लफ्ज कहने के लिए, वो तेरे सूखे लबों का थरथराना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। वक्त रुखसत
आ गया कर, आ गया कर वस्ल की शब भी कहीं जिक्र फिराक। आ गया कर वस्ल की शब भी कहीं जिक्र फिराक। वो तेरा रो रो के भी मुझको रुलाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है।
divided into three major parts: Delhi Sultanate, Mughal Empire, and pre-Delhi Sultanate or primary era. Because its primary era is comprised of different dynasties or different rulers, that's why it is not given any specific name. So starting from primary era, Muhammad bin Qasim was the first Muslim ruler to come in to invade India. And before Muhammad bin Qasim, King Harsha was the last ruler last Hindu ruler of the subcontinent. So Muhammad bin Qasim came to Sindh in 711 AD. आज का जो टॉपिक है वो है मेडाइवल इंडिया। मेडाइवल इंडिया स्टार्ट करने के पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि मेडाइवल इंडिया को हम पढ़ें तो पढ़ें क्यों। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसका बेस्ट वे यही होता है कि उसको पढ़ने के पहले हम ये चीज जाने कि यदि हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत की हिस्ट्री को 3 पार्टियों में क्यों बांटा गया है: एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। एक्चुअली ये बांटने का रीजन सिर्फ और सिर्फ भौगोलिक स्ट्रक्चर, भौगोलिक परिस्थितियां और बाहरी आक्रमण थे। एंशिएंट इंडिया में हम बात कर लेते हैं। पहले एंशिएंट इंडिया में भारत पहले छोटे छोटे राज्यों में बंटा था, ये चीज सबको पता है। इन राज्यों में ये राज्य राजा राज करते थे, ये राजा आपस में लड़ाई करते रहते थे। मींस एंशिएंट इंडिया में आपस के ही राजा, भारतीय उपमहाद्वीप के ही राजा आपस में युद्ध करते, बाहर का आक्रमण कोई भी नहीं होता था। मेडाइवल में क्या स्टार्ट हुआ? मेडाइवल में बाहरी आक्रमण स्टार्ट हुए, बाहर से आक्रमण होना स्टार्ट हुए। जो भी आक्रमण हो रहे थे अभी तक अंदर से ही हो रहे थे, बाहर से कोई भी आक्रमण नहीं हो रहा था। पर मेडाइवल की स्टार्टिंग से ही बाहरी आक्रमणों का आना स्टार्ट हो गया, बाहरी राजाओं का आना स्टार्ट हो गया, बाहरी धर्म का आना स्टार्ट हो गया। बाहरी राजा, बाहरी धर्म दोनों का आना स्टार्ट हो गया। ये बाहरी राजा और बाहरी धर्म क्या थे? मुस्लिम राजा थे और मुस्लिम धर्म था। ये जो भी आ रहे थे वो किस रास्ते से आएंगे? नॉर्थ वेस्ट के रास्ते से आएंगे। क्यों नॉर्थ वेस्ट के रास्ते से ही? क्यों ये बाकी दिशाओं से क्यों नहीं? भारत जो है वो 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है और समुद्र के रास्ते से आक्रमण करने के लिए क्या चीज होनी जरूरी है? शिप। जब भाई शिप का आविष्कार होगा तभी तो भारत पे आक्रमण करेंगे ना शिप से। जब शिप का आविष्कार ही नहीं होगा तो भारत पे शिप से कैसे आक्रमण करेंगे? नहीं होगा। मीन 3 तरफ से भारत को कोई दिक्कत नहीं है मेडाइवल में, ठीक है, क्योंकि शिप का आविष्कार ही नहीं हुआ अभी तक। उत्तर के पूरे इतने बड़े एरिया में क्या होता है? हिमालय होता है। तो ये चीन और तिब्बत वाला जो हिस्सा है वो भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता क्योंकि इतना बड़ा हिमालय खड़ा हुआ है। यदि किसी को आक्रमण करना है तो वो हिमालय को पार करके आएगा और हिमालय को पार करना इतना आसान काम तो है नहीं। इसके बाद कौन सा हिस्सा खुला बचता है भारत का? सिर्फ ये वाला हिस्सा खुला बचता है, नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा। मतलब अब जो भी आक्रमण होंगे मेडाइवल में वो कहां से होंगे? नॉर्थ वेस्ट से होंगे। नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन से जगह थी? सिंध था, पेशावर था, पंजाब, गुजरात, ये सब राज्य पड़ा करते थे। मतलब जो भी आक्रमण होंगे इस टाइम पे वो कहां से होंगे? वो इन्हीं राज्यों पे होंगे। सिंध, पेशावर, गुजरात, पंजाब, इन्हीं सब राज्यों में होंगे। मॉडर्न में क्या होता है? मॉडर्न में जो शिप का आविष्कार हो जाएगा, शिप का आविष्कार हो जाएगा तो यूरोप वासियों की एंट्री होगी, यूरोप वासी भारत पे आक्रमण करेंगे। अब हम देख लेते हैं आगे। भारत पर जो पहला आक्रमण होता है वो 711 एडी में होता है। कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम करता है। मोहम्मद बिन कासिम भारत में पहली बार आक्रमण 711 एडी में करता है और दोबारा आक्रमण 712 एडी में करता है। मतलब यदि आपसे पूछा जाएगा कि पहला आक्रमण कब हुआ तो 711 एडी में, पर पहला जो सफल आक्रमण जो हुआ वो 712 एडी में। पहला आक्रमण जो होता है वो असफल हो जाता है। मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण जो करता है वो कहां पे करता है? सिंध में। सिंध का राजा कौन होता है? दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है और सिंध को अपने कब्जे में ले लेता है। ये इतिहास के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जीत होगी। क्यों? क्योंकि इसके पहले तक कोई भी
आक्रमण नहीं हुआ था भारत में, बाहरी कोई भी भारत में जीता नहीं था। ये पहला आक्रमणकारी था जिसने भारत पर विजय प्राप्त की। इस लिहाजे से, इस तरीके से देखा जाए तो ये भारत में बहुत महत्वपूर्ण जीत हुई, इसने रास्ता खोल दिया भारत में जीत का। उसके बाद लंबे समय तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं होता है, लंबे समय तक भारत में कोई भी विदेशी आक्रमण नहीं करता है। He was nephew of he was a nephew of the governor of Hijaz, and he was sent by his uncle to rescue the Muslims which were captured by Raja Dahir in Sindh. And he was actually he was a robber or a thief. He captured a ship that was going through his area. You can the one which was near the Sindh port, and the Raja Dahir captured Muslims, especially Muslim ladies, and one rescue went to Hijaz, and he explained to the governor that this situation is happening with the Muslim. So Muhammad bin Qasim was not basically an invader, he was a rescuer of Muslims. So at the very young age he came to India and he conquered Sindh. So Sindh is called as the doorway of Islam because the Muslims first came to Sindh, and the initial government of Muslims was developed in Sindh. So it is declared as a doorway of Islam in the subcontinent. And later on, in 715 AD, he was called back in his native country, and because there was some internal conflicts, and on the basis of that conflict, or in those conflicts, he was captured and he was killed over there. Or there are two stories that he was killed on the way, or there is another story on another instance that he got killed during capture. The rise and growth of Islam took place mainly in Arabia. The Arabs and the Persians strengthened Islam. The Turks helped spread Islam towards the east and the west. India and Arabia shared commercial relations between them for a long time. The Arabs were attracted by the rich ports of Sindh in India. They wanted to extend their political and religious control over this region. They were also angry with the ruler of Sindh, who failed to check the pirates who plundered them. Muhammad bin Qasim was sent by Al-Hajjaj, the governor of Iraq and Khurasan. Caliph Walid had granted him permission to conquer Sindh. Muhammad bin Qasim defeated King Dahir in a battle and captured Sindh. He also captured Multan and looted its enormous wealth. He renamed Multan as the City of Gold. Muhammad bin Qasim divided Sindh and Multan into a number of iqtas or districts. Arab military officers were appointed as heads of the iqtas. Local Hindu officers were allowed to administer the subdivisions of the districts. The Arabs imposed jizya on non-Muslims. Caliph Suleiman succeeded Caliph Walid after his death. He was an arch-enemy of Al-Hajjaj, the governor of Iraq. He dismissed Muhammad bin Qasim as he was the son-in-law of Al-Hajjaj. He sent him as a prisoner to Mesopotamia and tortured him to death. Sindh and Multan remained as part of the Caliph's empire for more than 150 years. Their power gradually declined. The conquest of Sindh sowed the seeds for the coming of Islam into India. The Arabs learned the art of administration, astronomy, music, painting, medicine, and architecture from our land.
Indian philosophy, numerals, and astronomy were taken to Europe by the Arabs. So after Muhammad bin Qasim, so it was very, you can say it was very harmful for Islam, because the Muslim that were left in that region, so they were compelled to reconvert into Hinduism or other religions, because most of the Hindus were inspired by Muhammad bin Qasim, and they were converted into Islam. And some of them were already Muslims, because they were due to the trade that was being carried out because in Arab and in India. So Islam lost its worth in in southeastern part of India, and later on the Turk Afghans started invading in India. मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो नेक्स्ट आक्रमणकारी आता है वो कौन आता है? महमूद। ओके, महमूद कहाँ का शासक होता है या कहाँ से बैठ के शासन करता है? वो होती है जगह होती है गजनी। मतलब महमूद गजनबी इसको कहा जाता है, गजनी का शासक होता है, महमूद इसका नाम होता है। ठीक, मतलब गजनी को हमको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, गजनी अस्तित्व में कैसा है देख लेते हैं। गजनी की संस्थापना या स्थापना 932 में 1932 एडी में कौन करता है? अल्पतगीन करता है। अल्पतगीन कौन होता है? टर्किश होते हैं, तुर्की लोग होते हैं। अल्पतगीन जो स्थापना करता है उसका नाम क्या रखता है? गजनी। और गजनी की स्थापना या गजनी साम्राज्य की स्थापना करने के बाद उसकी राजधानी भी क्या बनाता है? उसका भी नाम करता है ये गजनी। मतलब राज्य का भी नाम गजनी और उसकी राजधानी का नाम भी गजनी। अल्पतगीन जो होता है वो कुछ समय तक शासन करता है। अल्पतगीन के शासन के बाद क्या होता है? इसका बेटा आता है, इसकी मृत्यु होती है, इसका बेटा आता है। कौन, क्या नाम होता है? पीरीतगीन। पीरीतगीन जो होता है 1972 से 1977 तक शासन करता है। पीरीतगीन के शासन के बाद कौन आता है? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? ये अल्पतगीन का गुलाम व दामाद होता है। किसका? अल्पतगीन का गुलाम व दामाद होता है। ठीक, सुबुक्तगीन जो होता है वो अल्पतगीन का गुलाम व दामाद होता है। इसका सपना होता है कि मैं भारत को जीतूंगा। भारत को जीतूंगा तो ठीक है, पर भारत पर आक्रमण करना कहां से संभव है? सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट के रास्ते से। अभी मैंने आपको पहले बताया जो भी आक्रमण होंगे वो कहां होंगे? नॉर्थ और वेस्ट से। तो ये नॉर्थ और वेस्ट पे आक्रमण करता है, ठीक, या नॉर्थ या वेस्ट पे जीतने का सपना देखता है। नॉर्थ वेस्ट पे कौन सा राज्य होता है उस टाइम पे? पेशावर नाम का राज्य होता है। ये पेशावर पे आक्रमण करता है। पेशावर पे आक्रमण करके वहां का राजा कौन होता है? जयपाल। जयपाल को पराजित करता है, पेशावर के राजा जयपाल को पराजित करता है और वहां पे शासन कर लेता है। महमूद आप गजनी देख लेते हैं। इसके बाद इसका पुत्र होता है कौन? महमूद गजनवी या महमूद। ठीक, 1998 में ये शासन करने बैठता है। इसके बाद 27 वर्ष की एज में शासक बनता है कहाँ का? खुरासन का। 1998 में खुरासन का। ठीक, खुरासन जो होती है वो जगह होती है किसके अंडर में? गजनी के अंडर में। पिता जब इसका गजनी साम्राज्य का मतलब गजनी साम्राज्य का राजा होता है, किंग होता है, उस समय ये कहाँ का किंग होता है? खुरासन का किंग होता है। 27 वर्ष की एज होती है 1998 में। ठीक, इसके बाद जो पिता का सपना होता है वो कौन पूरा करता है? पुत्र पूरा करता है। सुबुक्तगीन का सपना क्या था? भारत को कॉन्कर करने का। इसका सपना क्या होगा? भारत को कॉन्कर करने का। क्योंकि पिता का सपना कौन पूरा करेगा? पुत्र पूरा करेगा। अपने पिता के सपने को या अपने सपने को पूरा करने के लिए ये क्या करता है? 17 बार भारत में आक्रमण करता है। टोटल 17 टाइम भारत में आक्रमण करता है। जब ये राजा बनता है, जिस समय ये राजा बनता है, एक क्या नारा देता है या क्या होता है? जिहाद का नारा देता है। एक कट्टर मुस्लिम होता है। जिहाद के नारे में ये बोलता है कि जो भी नॉन मुस्लिम कंट्री हैं, उन नॉन मुस्लिम कंट्रियों पे मैं आक्रमण करूंगा, उनको हराऊंगा, उनको परास्त करूंगा और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा। ठीक है, इस चीज को लेके आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद क्या होता है? बगदाद का एक खलीफा होता है, ठीक है, अल आदिर बिल्लाह।
ठीक है। अल आदिर विल्लाह बगदाद का खलीफा होता है। बगदाद के खलीफा से ये दो उपाधियां लेता है। कौन कौन सी लेता है? यामीन दौला और यामीन उल मिल्ला, दो उपाधियां लेता है। बगदाद के खलीफा से कौन कौन सी उपाधि लेगा? यामीन दौला और यामीन उल मिल्ला। ठीक, उसके अलावा क्या करेगा? ये सुल्तान की उपाधि भी धारण करता है। ये पहला टर्किश होता है, फर्स्ट टर्किश होता है, पहला तुर्की राजा होता है जो सुल्तान की उपाधि धारण करता है। सुल्तान की उपाधि क्यों धारण करता है ये देख लेते हैं। सीस्तान नाम की एक जगह होती है। सीस्तान नाम की जगह में जब खलफ बिन अहमद वहां का राजा होता है, उसके ऊपर ये आक्रमण करता है। आक्रमण में जीतने के बाद ये सुल्तान की उपाधि धारण, किस पे? सीस्तान के राजा खलफ बिन अहमद पर आक्रमण करने के बाद ये सुल्तान की उपाधि धारण करता है। इसके बाद भारत पे आक्रमण करने के लिए जिहाद, मतलब जो भी नॉन मुस्लिम कंट्री है उनको पे आक्रमण करना। ये भारत के प्रारंभिक आक्रमणों से देखा जाए तो 1001 में 1001 में पहला आक्रमण करता है। ये इनिशियल आक्रमण करता है अपना, किस पे करता है? हिंदू शाही राजा और होता है जयपाल। हिंदू शाही राजा जयपाल पे आक्रमण करता है और जयपाल को पराजित कर देता है। जयपाल बहुत घृणा से भर जाता है कि भाई मैं हार गया, एक बाहरी से हार गया, ठीक है। तो वो बाद में फांसी लगा लेता है, अपनी घृणा के कारण, अपनी आत्मग्लानि के कारण लगा लेता है। इसके बाद इसका पुत्र कौन होता है? आनंदपाल। आनंदपाल भी अपने पिता का मतलब बदला लेने के लिए कहना चाहिए, या फिर अपने पिता की मृत्यु का सबक सिखाने के लिए कहां पे आक्रमण करता है? महमूद पे आक्रमण करता है। महमूद उसको वैदेही के बैटल में पराजित करता है और साथ में 1008 में कई सारे शाही राजाओं को हराकर उनकी संपत्ति हड़प लेता है। ठीक है, ये पेशावर के निकट लड़ाई होती है। ठीक, महमूद ने क्या किया? वैदेही के बैटल में आनंदपाल को पराजित किया। ठीक, इसकी और देखो ऐसे तो कई सारी लड़ाइयां की इसने भारत में, 17 बार आक्रमण किया तो 17 लड़ाइयां हैं, पर हमें उनमें से कुछ कुछ मेन पढ़नी है जिसने मेजर चेंज किए हैं हिस्ट्री में। ओके, ये क्या करता है? नगरकोट नाम की एक जगह होती है, नगरकोट में आक्रमण करता है। इसका जो नगरकोट वाला आक्रमण होता है वो किस चीज के लिए जाना जाता है? मूर्ति पूजा के लिए जाना जाता है। मूर्तिवाद के विरुद्ध इसकी बड़ी जीत में से एक मानी जाती है नगरकोट का आक्रमण। ठीक, नगरकोट में आक्रमण के सिलसिले में कहां पे आक्रमण करता है? पंजाब हिल में आक्रमण करता है। पंजाब हिल में आक्रमण किया करता है। उसके बाद कहां पे आक्रमण करता है? थानेश्वर में आक्रमण करता है। थानेश्वर में क्या करता है? एक चक्र स्वामिनी की मूर्ति होती है। चक्र स्वामिनी की मूर्ति को ले जाके अपने यहाँ रंगभूमि में रखवा देता है। ठीक, चक्र स्वामिनी थानेश्वर में आक्रमण करता है। चक्र स्वामिनी की कांसे की प्रतिमा होती है, ये मिलनी किसी धातु की बनी होती है, कांसे की, ले आगे कहां पर रखवाता रहता है? अपने यहाँ पे रंगभूमि में रखवाता है। ये कब की बात है? वो 1011 की बात है। इसके बाद ये कहां आक्रमण करता है? इसकी सबसे बड़ी जीतों में से, उसमें भी सबसे बड़ी जीत जो होती है वो होती है 1025 में। यह सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अधिक चेंजेबल आक्रमण जो होता है वो कब होता है? 1025 में होता है। कहां पे करता है? ये सोमनाथ के मंदिर में। सोमनाथ का मंदिर आपको पता होगा कि क्या होता है, उस समय बहुत अधिक फेमस होता है, बहुत अधिक जाना जाता है अपने धन संपदा के कारण, अपनी भव्यता के कारण। सोमनाथ का मंदिर, जब ये 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है तो वहां का राजा कौन होता है? सोलंकी किंग भीमदेव फर्स्ट। अलीबाड़ का राजा भीमदेव फर्स्ट उसका विरोध करता है कि भाई हम तुमको लूट नहीं ले जाने देंगे। भैया वैसे तो वो आक्रमण उद्देश्य था कि धन लूटना, तो वो आता है शिव टेम्पल पे आक्रमण करता है और पैसे को ले जाता है। इसका जो सबसे लास्ट आक्रमण जो होता है भारत पे वो जाटों के विरुद्ध होता है। वो कब होता है? 1027 में। 1027 में सबसे अंतिम आक्रमण किया करता है ये 1027 में जाटों के विरुद्ध, और उसके बाद ये घायल हो जाता है। घायल होने के बाद अपने घर वापस लौटता है और 1030 में बीमार रहता है। ये 1030 में बीमार होता है और इसकी हत्या कर दी जाती है 1030 में। ठीक, इसके साथ कुछ फेमस लेखक आते हैं बाहर के, वो लेखक देख लेते हैं। इनकी बुक्स के नाम अक्सर पूछे जाते हैं पेपर्स में, इसलिए आप याद रखिएगा। ठीक है, कौन आता है? फिरदौसी आता है।
फिरदौसी की बुक का नाम क्या होता है? सायनामा। कौन आया इसके बाद? अल-बरूनी। अल-बरूनी की बुक का नाम क्या हुआ? किताब-ए-हिंद। दोनों की बुक का नाम पूछा जाता है, आप बिल्कुल ध्यान से इन दोनों बुक्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। फिरदौसी आता है, एक अल-बरूनी आता है। फिरदौसी के बुक का नाम आता है सायनामा, अल-बरूनी की बुक का नाम आता है क्या? किताब-ए-हिंद। और भी कुछ लेखक है, यदि आप चाहें तो लिख लिए, मैं ओरली आपको बता देता हूं, ठीक है। उसमें कौन आता है? उतबी आता है इनके साथ, और इसके साथ वैहाकी आता है। वैहाकी की बुक का नाम होता है तारीखे सुबुक्तकीनी। ठीक, मतलब टोटल हम जानते हैं 4 लोग इसके साथ है, फिरदौस, अल-बरूनी, उतबी और वैहाकी। फिरदौस की बुक का नाम सायनामा, अल-बरूनी की बुक का नाम किताब-ए-हिंद, तारीखे सुबुक्तकीनी किसकी बुक होती है? वैहाकी की। So first invader was Mahmud Ghaznavi. He invaded 17 times in India, and 17th time when he invaded India, he destroyed the temple of Somnath. It's a very you can say it's a very famous instance, or a famous incident, that in the last invasion he finally got a chance to destroy the temple of Somnath. And some historians with Muslim background, they say that Islam doesn't allow us to kill any Hindu or any other religion without any solid reason, and not to destroy their worship places. So the Muslim justify it, but the Hindus or other religions, they condemn it, that it was not a positive move. It was not that good, and they claim, they put the view in front of us that it was the intention of the Mahmud's attack was to collect wealth, and he destroyed this temple to get the wealth, or to get the gold that was placed inside that temple, or that idol. He died in 1030, and later on the next ruler which invaded India was Muhammad Ghori. महमूद गजनबी के बाद यदि इंडिया में कोई आक्रमणकारी आता है, मेजर आक्रमणकारी, जिसने भारत में मुस्लिम धर्म की, मुस्लिम राजाओं की नींव यहाँ पे डाली, वो कौन होता है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो था वो गौर साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, गौर साम्राज्य का शासक था। गौर का साम्राज्य कहाँ था भाई? गौर साम्राज्य गजनी के अंडर एक छोटा सा साम्राज्य था। ठीक, ये अपने जैसे राजा बनता है, ओके, राजा बनने के पहले इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? मुअज्जिद्दीन मुहम्मद महमूद गजनबी के नाम से भारत पर, गौर पर शासक करता। ठीक, इसके बाद राजा बना। राजा बनने के बाद पहला काम क्या करेगा? अपने साम्राज्य को मजबूत करेगा। अपने साम्राज्य को मजबूत भी कर लिया। ठीक, अब सपने देखने का टाइम आया। इसने भी सपना देखा कि मैं भारत को कॉन्कर करूंगा, भारत को विजयी करूंगा और वहां पर साम्राज्य स्थापित करूंगा। भाई अब सपना देखा है तो पूरा करने के लिए भी कुछ करना होगा। ठीक, 1175 में ये आक्रमण करता है। कहां पर? मुल्तान में। पहला आक्रमण करता है मुल्तान में। मुल्तान को जीत कर पूरे सिंध को अपने अंडर में ले लेता है। भाई 1175 में आक्रमण किया मुल्तान में, और मुल्तान को जीतकर पूरे सिंध को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद 1178 में ये आक्रमण करता है। कहां? पाटन, गुजरात में। पाटन गुजरात का राजा उस समय जो होता है वो भीम सेकंड होता है। भीम सेकंड बहुत पराक्रमी होता है, बहुत बलशाली होता है। इसको हरा देता है युद्ध में, बहुत बुरी तरीके से हराता है। बहुत बुरी तरीके से यदि कोई हारेगा तो क्या होगा? बहुत टाइम लगेगा उसको साहस जुटाने में दोबारा आक्रमण करने। लंबे समय तक फिर ये आक्रमण नहीं करता। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 1191 में ये फिर आक्रमण करता है। ठीक, इस बार आक्रमण किसके ऊपर करता है? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर।
पृथ्वीराज चौहान जो थे वो चौहान वंश के संस्थापक हुआ करते हैं। चौहान वंश के संस्थापक चौहान वंश के राजा होते हैं उस समय पे। चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान पे वो आक्रमण करता है। ठीक, पृथ्वीराज चौहान इसको बड़ी आसानी से हरा देते हैं। बड़ी आसानी से हराने के बाद ये वापस लौट जाता है। ये होता है फर्स्ट बैटल ऑफ द राइन। महत्वपूर्ण युद्ध है, इसकी डेट सन याद रखिएगा, 1191 को ये युद्ध होता है, बैटल ऑफ द राइन फर्स्ट। ठीक, इस पे क्या होता है, पृथ्वीराज की जीत होती है और गोरी की हार होती है। एक जब बहुत बुरी तरीके से पराजित होता है तो बहुत शर्म से भर जाता है और पछताता, मतलब बदले लेने की आग में जलता रहता है। कोई मौका तलाशता रहता है कि किसी भी तरीके से पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करो। ठीक, जयचंद्र के साथ कुछ पृथ्वीराज चौहान के कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिसके कारण भेदभाव होते हैं, जिसके कारण जयचंद्र मौका देख के गौरी को बोलता है कि तुम आओ और आक्रमण करो पृथ्वीराज चौहान पर, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की सेना अभी दूसरे अभियानों में मतलब व्यस्त है, वो तुमसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, तो तुम अभी आक्रमण करो तो जीत सकते हो। तो गौरी की बहुत बड़ी सेना तो इन्होंने तबाह कर दी थी पृथ्वीराज चौहान ने। अब क्या करेगा ये जाता है किसके पास, गजनी साम्राज्य के पास। गजनी साम्राज्य के पास जाने के बाद कहता है कि मुझे प्लीज कुछ सैनिक दे दीजिए, कुछ मुझे हाथी घोड़े दे दीजिए, अस्त्र शस्त्र दे दीजिए, ताकि मैं लड़ाई कर सकूं। और लड़ाई करने के बाद जो पैसे मिलेंगे या धन मिलेगा वो किसको दूंगा, आपको दूंगा, वो आपको मैं पैसे दूंगा, वो आपको मैं धन दे दूंगा। बोले ठीक। 1192 में वो सब कुछ इकट्ठा करके, सेना इकट्ठी करके, एक और साम्राज्य से जो अपनी बची कुची से सेना होती है वो लेता है और गजनी साम्राज्य से अपनी बची कुची सेना मतलब कुछ मांगता है और वापस युद्ध करता है 1192 में। ये युद्ध किस नाम से जाना जाता है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन के दूसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, इसको भी याद रखिएगा सन सहित। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की सेना इनके पास होती नहीं है, दूसरे अभियानों में होती है और राजपूत भी इस बार इनके साथ नहीं देते, इसके कारण ये हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। अब जो गड्ढा खोदता है वो भी गड्ढे में गिरता है। ठीक, पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करने के बाद, मतलब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद फिर क्या, चंदावर का युद्ध होता है 2 साल बाद। ये युद्ध किस पे होता है, किसके साथ होता है, जयचंद्र। जयचंद्र कौन, वही जयचंद्र जिसने गोरी को इनवाइट किया था पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करने के लिए। जयचंद्र पे आक्रमण करता है गोरी इसको भी हरा देता है। ये बनता है बैटल ऑफ चंदावर। या चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, इसमें जयचंद्र हार गया। ठीक, इस युद्ध के बाद ये तय हो गया कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई है, उनकी जड़ें मजबूत हो गई हैं। ठीक, उसके बाद 15 मार्च 1206 को उसकी डेथ हो जाती है। He was native of Hor, which is a place of Afghanistan. He conquered Punjab and Kinauj. Kinauj was the center point or the head office, or you can say the capital of the King Harsha's government. So when he returned to his country, he was also killed in internal conflicts. So the next 1206 से लेके 1526 के बीच में टोटल 5 डायनेस्टी राज करती हैं। पहली डायनेस्टी जो होती है उसमें से होती है स्लैब डायनेस्टी। ये 1206 से लेके 1290 के बीच में शासन करती है। दूसरी होती है खिलजी डायनेस्टी, 1290 से लेके 1320 के बीच में शासन करती है। तीसरी डायनेस्टी होती है तुगलक डायनेस्टी, 1320 से लेके 1414 के बीच में शासन करती है। चौथी जो डायनेस्टी होती है सैयद डायनेस्टी, 1414 से लेके 1451 के बीच में डायनेस्टी राज करती है। ये लोधी डायनेस्टी आती है। लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 के बीच में शासन करती है। इन पांचों डायनेस्टी को लाइन से याद करना जरूरी है। इन पांचों डायनेस्टी का टाइम पीरियड याद करना जरूरी है। तो स्लैब डायनेस्टी, स्लैब को हिंदी में गुलाम वंश भी कहते हैं, या इसका दूसरा एक नाम होता है मामलुक डायनेस्टी। ये 2 नाम से ये जानी जाती है। ठीक,
इसके बाद आती है खिलजी डायनेस्टी, खिलजी के बाद आती है तुगलक। तुगलक डायनेस्टी जो होती है वो 1320 से लेके 1414 शासन करती है, मतलब 94 ईयर, 94 साल में, 94 ईयर में ये सबसे बड़ी डायनेस्टी बनती है टाइम ड्यूरेशन के माध्यम से, मतलब टाइम ड्यूरेशन के यदि हम पर्पस से देखें तो ये सबसे बड़ी डायनेस्टी होती है। तुगलक डायनेस्टी सबसे अधिक लंबे समय तक शासन करती है। इसके बाद आती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1451 तक राज करती है। ये टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटी डायनेस्टी होती है। इन दोनों के नाम, सबसे बड़ी तुगलक डायनेस्टी और सबसे छोटी सैयद डायनेस्टी, ये दोनों का नाम याद रखिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं स्लैब डायनेस्टी। 1206 से लेके 1290 के बीच में ये शासन करता है। स्लैब डायनेस्टी प्रमुख राजा यदि हमको से पूछे जाते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये तीन प्रमुख राजा होते हैं जो शासन करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका पहला राजा बनता है कुतुबी डायनेस्टी का, या फिर कहना चाहिए गुलाम वंश का पहला राजा जो बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे राजा बनता है ये देख लेते हैं। गोरी जो होता है, गोरी की मृत्यु कब होती है? 15 मार्च 1206 को। 15 मार्च 1206 को गोरी की मृत्यु के पहले गोरी भारत में 3 मेजर युद्ध लड़ा करता है। कितने मेजर युद्ध लगता है? 3 मेजर युद्ध लड़ा करता है। कौन कौन से युद्ध लड़ता है? पहला जो युद्ध होता है उसमें से वो क्या होता है, उसका नाम वो होता है 1191। दूसरा युद्ध जो लड़ता है 1192 में। ये 4 युद्ध जीतने के बाद भारत में वो बहुत बड़ी मात्रा में जमीन जीतने में सक्षम हो जाता है। एक लगभग इतना बड़ा एरिया ये जीत लेता है। इसमें पाकिस्तान वाला पूरा रीजन, ठीक, दिल्ली तक का, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सारे रीजन ये जीत लेता है। अब इतने बड़े एरिया को जीतने के बाद 15 मार्च 1206 को इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद इसके पीछे काफी बड़ा साम्राज्य रहता है। अभी मैंने आपको दिखाया। इस साम्राज्य में कोई ना कोई तो राजा चाहिए, जबकि गोरी का कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं होते हैं। तो लाहौर की जनता, लाहौर पहले इसी एरिया में आता था, फिर पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है, पहले इंडिया में होता था। लाहौर की जनता कुतुबुद्दीन ऐबक को न्योता भेजती है, बुलावा भेजती है कि भाई आप आओ और यहां शासन करो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, अपना विधिवत राज्याभिषेक कराता है 1206 में ही। कहां से? लाहौर से अपना विधिवत राज्याभिषेक कराता है। विधिवत राज्याभिषेक कराने के बाद गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर यदि कोई बैठता है तो क्या होगा? उसके जो दूसरे उत्तराधिकारी होंगे वो उसका विरोध करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दूसरे उसके उत्तराधिकारी विरोध करते हैं। उन उत्तराधिकारियों में मेनली होता है एल्दौज, कुबाचा और नसरुद्दीन महमूद। एल्दौज, कुबाचा और नसरुद्दीन महमूद। एल्दौज, कुबाचा, नसरुद्दीन महमूद ये इसका विरोध करते हैं। इन तीनों से अभी इसके पास क्या ऑप्शन है? अब यदि कोई विरोध करता है तो 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो उससे संबंध स्थापित करो, या उससे संबंध अच्छे करो, या दूसरा ऑप्शन बचता है हमारे पास युद्ध। तो कुतुबुद्दीन ऐबक नया राजा बना होता है, अभी जस्ट फ्रेशर में राजा बना होता है, तो ये युद्ध को नहीं प्रेफरेंस देता, नहीं चाहता कि वो युद्ध करे। वो क्या प्रेफरेंस देता है कि हम वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। तो इनसे ये वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। एल्दौज की जो पुत्री होती है उससे विवाह कर लेता है। कुबाचा की को अपनी बहन से विवाह करवा देता है। कुबाचा का एल्दौज से अपनी विवाह किया तो ये इसका ससुर बन गया। कुबाचा से अपनी बहन का विवाह कर दिया। और नसरुद्दीन महमूद जो होता है 1208 में खुद ही आके छत्र और पताका भेंट करता है। जब नसरुद्दीन महमूद देखता है कि सब लोग मान गए, एल्दौज मान गया, कुबाचा मान गया, तो मैं अकेले क्या लड़ाई करूं, या फिर लड़ाई करने के सक्षम नहीं होता, तो ये खुद ही आता है और छत्र पताका भेंट करता है। मतलब हम आपको राजा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, हमारा विरोध खत्म हुआ। एक और पर्सन से ये वैवाहिक संबंध स्थापित कराता है, उससे अपनी पुत्री का विवाह करता है, वो होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश यही बाद में आगे चल के गुलाम वंश का राजा बनता है। इल्तुतमिश ये अपने एरिया में या अपने टाइम पीरियड में मीरुत, कलिंजर, महोबा, रणथंबोर और कन्नौज पे शासन करता है। मेरुत, कलिंजर, महोबा, रणथंबोर और कन्नौज पे शासन करता है।
इसको लाख बक्स कहा जाता है। लाख बक्स क्यों कहा जाता है इसको? ऐसा बोला जाता है कि जब ये गोरी का गुलाम होता है, सेनापति होता है, उस टाइम पे जब ये युद्ध जीता करता है, उस टाइम पे जब इसे पैसे मिलते हैं तो ये वो सारे के सारे पैसे या मतलब जो भी उसको इनाम मिलता है वो सारे के सारा इनाम वो किसको दे देता है? अपने सिपाहियों को दे देता है। इसलिए उसको लाख बक्स कहा जाता है। ये गिवर है ब्लैक्स का मतलब होता है। ये बहुत अधिक अत्यधिक उदार होता है। इसकी उदारता के कारण इसको हातिम द्वितीय की भी संज्ञा दी जाती है या हातिम द्वितीय भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक उदार होता है। इस कारण ये एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराता है दिल्ली में, और ये 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करता है अजमेर में। ये 2 फेमस मस्जिद का निर्माण कराता है 1194 में। 1194 में ये कहां पे आक्रमण करता है? अजमेर में आक्रमण करता है। अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय होता है और एक जैन विश्वविद्यालय होता है, सॉरी जैन मंदिर होता है। ये संस्कृत विश्वविद्यालय और जैन मंदिर पर आक्रमण करता है। संस्कृत विश्वविद्यालय और जैन मंदिर पर आक्रमण करके उसको नष्ट कर देता है, तोड़ देता है। तोड़ने के बाद उसका जो मलबा बचता है उससे 2 मस्जिद का निर्माण करता है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा। इन 2 मस्जिद का निर्माण किया करता है। ये एक कुतुबुद्दीन, इसके गुरु होते हैं। गुरु कौन होता है? कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी। एक सूफी संत होते हैं। ये सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के नाम पर ये कुतुब मीनार का निर्माण कराता है या कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराता है। ये कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ तो कराता है, लेकिन पूरा करने के पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब ये कह सकते हैं कि कुतुब मीनार की नींव किसने डलवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डलवाई। ये दोनों, एक क्वेश्चन कुतुब मीनार वाला, ठीक है, और ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इनको जरूर से जरूर याद रखिएगा। और लाख बक्स भी कई बार पूछ लिया जाता है कि लाख बक्स की उपाधि किसको दी गई थी या लाख बक्स किसको कहा जाता है, तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। कुतुब मीनार की नींव डलवाने के बाद उसको पूरा करवाने का काम इसका दामाद होता है। अभी मैंने आपको बताया इल्तुतमिश पूरा कराता है। इल्तुतमिश का दामाद होता है। ठीक। 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय में इसका एक सहायक सेनापति होते। 1193 मतलब कब की बात हुई? ये तब की बात हुई जब गोरी जिंदा था, ये गोरी का गुलाम हुआ करता था, तब की बात हुई। गोरी के गुलाम के समय पे बख्तियार खिलजी नाम का एक सहायक सेनापति होता है। वो विक्रमशिला के नालंदा विश्वविद्यालय पे आक्रमण करके उसको जला देता है 1193 में। इसके बाद ये पोलो खेलते समय 1210 में पोलो खेलता होता है और पोलो खेलते समय इसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिर के। इसकी मृत्यु के बाद इसका जो मकबरा बनाया जाता है वो लाहौर में बनाया जाता है। ये उसके मकबरे की फोटो है, ये उसके मकबरे का जगह है, ये आप देख सकते हैं। लाहौर में इसका मकबरा बनता है। इसके बाद इसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठता है। आराम शाह गद्दी पर बैठा करता है। आराम शाह सिर्फ 8 महीने शासन करता है। ये बहुत अधिक योग्य नहीं होता है। 8 महीने तक शासन करता है और बाद में इल्तुतमिश की हत्या कर देता है। इल्तुतमिश हत्या करने के बाद खुद गद्दी पर बैठता है। आराम शाह की हत्या करने के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश जो होता है वो इल्बरी ट्राइब से या इल्बरी जनजाति से बिलोंग करता है। इल्तुतमिश की पहचान क्या होती है? इल्तुतमिश होता कहां पे है? तो इल्तुतमिश जो होता है वो ऐबक का गुलाम होता है, वह दामाद होता है। गुलाम व दामाद दोनों होता है। मैंने आपको ये बात ऐबक पढ़ाते समय भी बताई थी, आप याद करिए या पीछे जाके रिवाइंड करके आप देख सकते हैं कि ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो वैवाहिक संबंध स्थापित करता है किससे? इल्तुतमिश से अपनी बेटी का विवाह करा देता है। ये गुलाम भी होता है। चूंकि ये इल्तुतमिश इल्बरी डायनेस्टी से बिलोंग करता है, इस कारण से इस पूरी डायनेस्टी को इल्बरी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। इल्बरी डायनेस्टी जो होती है या इल्तुतमिश का जो वंश होता है वो 1210 से लेके 1266 तक शासन करता है। 1210 में
इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है और 1236 तक काम करता है। 1236 में लगभग ईयर का ड्यूरेशन होता है, 26 ईयर के ड्यूरेशन में ये शासन करता है। उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। अपने विरोधियों से निपटने के लिए, अपने विरोधियों को हराने के लिए ये 40 टर्किश सरदारों की एक टीम बनाता है, 40 तुर्की सरदारों की एक टीम बनाता है, जिसको क्या नाम दिया जाता है? तुर्की चहलगानी। तुर्की चहलगानी में चूंकि 40 लोग होते हैं, 40 लोग होने के कारण इसको 40 भी कहा जाता है या 40 भी कहा जाता है। तुर्की चहलगानियों का अच्छा खासा दखल होता है इल्तुतमिश के दरबार में। इल्तुतमिश इस लोग को काफी हद तक छूट दिया होता है, काफी हद तक अपने दरबार में कोई भी मुद्दा उठाने के लिए छूट देता है। इल्तुतमिश पहला राजा बनता है जो 1229 के आसपास बागदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की वैधानिक अनुमति लेता है। इसके पहले तक जो भी राजा आए उन्होंने बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की वैधानिक अनुमति नहीं ली होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में, पीएससी में पूछा सकता है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1215 में और 1217 में एल्दौज और कुबाचा युद्ध करने के लिए आते हैं। एल्दौज और कुबाचा आपको याद होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पे भी आते हैं, और एल्दौज से ये क्या करता है? एल्दौज की पुत्री से ऐबक विवाह किया करता है खुद, और कुबाचा से अपनी बहन का विवाह करा देता है और दोनों के विरोध को शांत करता है। अब चूंकि आराम शाह की हत्या करता है, तो आराम शाह जो होता है इसके रिश्तेदार लगे, तो इसके रिश्तेदारों की हत्या करने के कारण एल्दौज और कुबाचा फिर से विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। एल्दौज और कुबाचा के विरोध को दबाने के लिए ये युद्ध करता है। युद्ध करने के बाद एल्दौज और कुबाचा को हरा देता है 1215 और 1217 में। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दिल्ली सल्तनत का कोई भी विस्तार नहीं होता है या बहुत कम विस्तार होता है, पर इल्तुतमिश 5 युद्ध लड़ता है दिल्ली सल्तनत के विस्तार के लिए। बंगाल अभियान करता है, ग्वालियर अभियान करता है, चंदेल अभियान करता है, उज्जैन अभियान करता है और भेलसा अभियान करता है। बंगाल अभियान में बंगाल का जो राजा होता है वो कौन होता है? हसामुद्दीन इबाज। हसामुद्दीन इबाज को 1225 में हरा देता है। हसामुद्दीन इबाज के पास जब इल्तुतमिश सेना लेके जाता है, तो इल्तुतमिश की सेना देखकर हसामुद्दीन इबाज बिना लड़े हार मान लेता है और कहता है मैंने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली। पर जैसे ही इल्तुतमिश अपनी सेना लेके वापस आता है, तो हसामुद्दीन इबाज फिर कहता है कि अब मैं हार नहीं मानता हूं और अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित करता हूं और जो कर है वो भी नहीं दूंगा। तो इल्तुतमिश अपने प्रिय बेटे नसरुद्दीन इसका बहुत ही प्रिय बेटा होता है, नसरुद्दीन को बंगाल अभियान के लिए भेजता है। नसरुद्दीन बंगाल अभियान में जाने के बाद 1236 में हसामुद्दीन इबाज से युद्ध करता है और हसामुद्दीन इबाज को पराजित करके बंगाल को अपने अंदर मिला लिया करता है। ये इसके बाद ग्वालियर अभियान करता है। ग्वालियर अभियान में राजा मंगल देव होता है, मंगल देव से को पराजित करके 1231 में ग्वालियर को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। ये उसके बाद चंदेल अभियान 1233 में, उज्जैन अभियान 1234 में, भेलसा अभियान 1235 में कंटिन्यूअस इतने अभियान किया करता है और इनको लाइन से हराकर अपने साम्राज्य में मिला लेता है। ये इल्तुतमिश के टाइम पे लाहौर राजधानी से बदलकर दिल्ली कर दी जाती है। लाहौर किसके टाइम पे राजधानी होती है? लाहौर राजधानी होती है, लाहौर की पोजीशन ये होती है, लाहौर जो होती है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे राजधानी होती है और दिल्ली जो होती है वो इल्तुतमिश के टाइम पे राजधानी बनती है। इल्तुतमिश लाहौर से दिल्ली राजधानी परिवर्तित कर देता है। लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत प्रिय होता है। लाहौर से ये अपना राज्याभिषेक भी कराया करता है, याद होगा आपको, मैंने जब पेपर में कवर कराया था। और लाहौर में इसका मकबरा भी बना हुआ है, ठीक है। तो लाहौर से काफी जुड़ा हुआ होता है, पर ये लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली परिवर्तित कर देता है, ठीक। इसके बाद मंगोल आक्रमणकारी
मंगोल आक्रमणकारी कौन होता है? चंगेज खान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान आक्रमण किया करता है भारत पर। कब? 1221-22 के आसपास भारत पे आक्रमण करता है। चंगेज खान सिंध प्रांत पर आक्रमण किया करता है। सिंध प्रांत पे आक्रमण करने के बाद सिंध को जीत लेता है और वहां के ख्वाइजम के पुत्र जियाउद्दीन मांगबरनी को भगा देता है। जियाउद्दीन मांगबरनी भागने के बाद कहां आता है? पंजाब आता है। पंजाब में आकर इल्तुतमिश से शरण मांगता है, पर इल्तुतमिश को यह डर रहता है कि कहीं मैंने इसे शरण दी तो चंगेज खान मुझ पर भी आक्रमण ना करे, तो उसको ये शरण देने से, इसकी सहायता करने से मना कर देता है। पंजाब में 1228 में ये खुद ही जियाउद्दीन मांगबरनी खुद ही वापस लौट आया करता है, अपने देश वापस लौट आता है और उसी के साथ मंगोल आक्रमणकारी का भी खतरा टल जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम स्टार्ट कराया था, पर उसको पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा कराया, दिल्ली में बनी थी। ये अपने समय पे शुद्ध अरबी सिक्के, अरबी क्वाइन जारी करता है। इन अरबी क्वाइंस में क्या होता है, ये देख सकते हैं, इसे सिक्कों उसके टाइम के ये सिक्के हैं, इनमें अरबी लिखी हुई है, ये अरबी लिखी हुई है। ये उस टाइम पे जो सिक्के जारी करता है, एक सिल्वर का टका और कॉपर का जीतल जारी करता है। 175 गेंस के या 175 गेंस वजन के ये होते हैं। ये एक बहुत फेमस मस्जिद का निर्माण कराता है अजमेर में एक फेमस मस्जिद का निर्माण कराता है। ये इक्तादारी प्रथा भी शुरुआत करता है। इक्तादारी पहले इंडिया में नहीं चलती होती, ये बाहर से आई हुई प्रथा होती है। इक्तादारी में क्या होता है, अधिकारियों को नगद वेतन की जगह पर भूमि का कुछ हिस्सा दे दिया जाता है। इस भूमि को इक्ता कहा जाता है, इक्ता, ठीक, इक्ता कहा जाता है। इक्ता को एक अधिकारी को एक इक्ता दे दिया जाता है और वो अधिकारी क्या करता है, एक इक्ते पे शासन करता है। एक इक्ते पे, उस इक्ते पे शासन करके उससे जो भी धन होता है, उससे जो भी राजस्व होता है वसूलता है और कुछ हिस्सा अपने पास रखता है और कुछ हिस्सा राजा को देता है। यही इक्तादारी प्रथा होती है, ठीक। ये अमीरों का जो अमीर, The last one was Ibrahim Lodi, who was defeated by Babur, and Babur took control over subcontinent. So the major and the most important was the Mughal Empire. It was the last Muslim rule before the partition of Pakistan and India. So it started from